Hello everyone, welcome to this video for the students of class standard 10. The subject is English and the textbook is First Flight, and this is the second lesson of the First Flight. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the previous 5 videos we have read the lesson and interpreted the meaning. We have also learnt the questions and answers of page number 18. In this video, we shall try to learn the answers to the questions that have been given on page number 21 and 28, and also the questions given on page number 24. So let's start the questions and answers with this slide. The question number 2, page number 21. Why were 2 national anthems sung? 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए? Die Stem was the old anthem of South Africa, which was usually sung by the whites only. Die Stem जो राष्ट्रगान था वो दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ गोरे लोगों के द्वारा गाया जाता था और सबसे पहले यही गाया जाता था. नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका 2 was recognized as the national anthem of South Africa after the election of the new government. दक्षिण अफ्रीका में नई सरकार के निर्वाचन के बाद नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका को भी राष्ट्रगान की मान्यता दी गई. This anthem could be sung by all and without any discrimination. इस एंथम को, इस राष्ट्रगान को सभी के द्वारा गाया जा सकता था बिना किसी भेदभाव के. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. These two anthems were sung to recognize the representation of both the community in the newly elected government. और इसलिए इन दोनों राष्ट्रगान को इसलिए गाया जाता था कि दक्षिण अफ्रीका में नई सरकार के गठन में, नई सरकार में दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व हो सके. कौन थे 2 कम्युनिटी? विच वेयर द 2 कम्युनिटीज? द 2 कम्युनिटीज वेयर द कम्युनिटीज ऑफ वाइट स्किन्ड पीपल एंड ब्लैक स्किन्ड पीपल, एंड बोथ कम्युनिटीज कुड बी रिप्रेजेंटेड इन द newly elected government. That was why the 2 national anthems were sung. 2 राष्ट्रगान गाए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. How does Mandela describe the systems of government in his country? First, in the first decade, and second, in the final decade of the 20th century. नेल्सन मंडेला 20वीं सदी के पहले दशक में और अंतिम दशक में अपने देश में जो उनकी सरकार थी उसका वर्णन किस प्रकार करते हैं? Mandela describes the system of the government in his country as the most inhuman and the harshest system, promoting and protecting the policy of apartheid and racial discrimination in the first decade of the 20th century. मंडेला 20वीं सदी के पहले दशक में अपने देश में स्थित या अपने देश में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको कहते हैं मोस्ट इनह्यूमन, बिल्कुल अमानवीय, एंड द हार्सेस्ट सिस्टम, और कठोरतम व्यवस्था कहते हैं, जो कि प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति को बढ़ावा देता है और उसकी रक्षा करता है. मंडेला ने वर्णन किया है कि 20वीं सदी के पहले दशक में उनके देश में ऐसी ही व्यवस्था थी. He again describes the government in the last decade of the 20th century as the system that recognizes the rights and freedoms of all people irrespective of their race and color. और नेल्सन मंडेला 20वीं सदी के अंतिम दशक में उनके देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को वो कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों के राइट्स यानी अधिकार और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को मान्यता देती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस एंड कलर, उनके जाति और उनके रंग के आधार पर नहीं, उनके जाति और रंग से इतर उसको छोड़कर वो हर व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को मान्यता देती है। 20वीं सदी में ऐसी व्यवस्था हो गई थी।
And when was this system built in South Africa? In the last decade of the 20th century, after the election of new government. The next question, what does courage mean to Mandela? मंडेला के अनुसार courage यानी साहस का क्या मतलब है? According to Mandela, courage is not the absence of fear, but it is victory over it. मंडेला के अनुसार courage यानी कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, भय का नहीं होना साहस नहीं है, बल्कि भय के ऊपर विजय ही साहस है, ये मंडेला कहते हैं. He says that one who conquers his fear is really brave. मंडेला कहते हैं कि जिसने अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है वही बहादुर है, बाकी लोग नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Which does he think नेचुरल, टू लव और टू हेट? मंडेला किस चीज़ को प्राकृतिक मानते हैं, प्रेम को या घृणा को, प्रेम करने को या घृणा करने को, किसको प्राकृतिक मानते हैं? इन नेल्सन मंडेलाज ओपिनियन टू लव इज नेचुरल. नेल्सन मंडेला के विचार से प्रेम ही ज़्यादा प्राकृतिक है, बिकॉज इट इज़ लव दैट कम्स टू ह्यूमन हार्ट नेचुरली. मंडेला कहते हैं कि ये प्रेम ही है जो मानवीय हृदय के निकट आता है, मानवीय हृदय में प्रवेश करता है ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से. टू हेट इज़ लर्नड आफ्टर बर्थ. मंडेला कहते हैं कि जो घृणा करना है वो मनुष्य जन्म के बाद सीखता है. इट डज नॉट कम बाय बर्थ, यह जन्म के द्वारा नहीं आता है. सो टू लव इज मोर नेचुरल देन टू हेट. पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1. What twin obligations does Mandela mention? मंडेला दो दायित्वों का वर्णन करते हैं, और वो दोनों दायित्व क्या हैं? ये दोनों दायित्व का जो लेख मंडेला करते हैं, ये दो दायित्व क्या हैं? नेल्सन मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ टू फुलफिल इन हिज लाइफ. मंडेला दो दायित्वों का उल्लेख करते हैं जो हर मनुष्य को अपने जीवन में पूर्ण करना पड़ता है. The first obligation for a man is to his own family. जो पहला दायित्व है किसी मनुष्य का वो उसके अपने परिवार के लिए है. That may include parents, wife and children. और उस परिवार में हो सकता है कि माता पिता, पत्नी और बच्चे शामिल हों. He further mentions the duty to one's people. और उसके आगे जो दूसरा दायित्व वो बोलते हैं वो हर मनुष्य के जीवन में जो दायित्व है वो उसके अपने लोगों के प्रति है. टू कम्युनिटी एंड कंट्री, उसके समुदाय के प्रति है और उसके देश के प्रति है. एज द सेकेंड ऑब्लिगेशन फॉर अ मैन. नेल्सन मंडेला इसी को सेकेंड ऑब्लिगेशन कहते हैं, दूसरा दायित्व. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast? Now, this is the second question of page number 24. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast this transitory freedom with the basis and honorable freedoms? मंडेला के अनुसार फ्री होना यानी स्वतंत्र होने का वास्तविक मतलब क्या है? एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट. मंडेला के अनुसार एक लड़के के रूप में और एक छात्र के रूप में स्वतंत्र होने का वास्तविक मतलब क्या है? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम. वो ये जो क्षणिक स्वतंत्रता है उसको मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता से कैसे अलग करते हैं? Now the answer.
एज ए स्टूडेंट द इंडिविजुअल फ्रीडम लाइक स्टेइंग आउट एट नाइट, reading the favorite book and visiting the desired place only was the meaning of freedom for Nelson Mandela. एक छात्र के रूप में नेल्सन मंडेला के लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था? द इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता. कौन सी स्वतंत्रता? लाइक स्टेइंग आउट एट नाइट, रात में घर से बाहर रहने की स्वतंत्रता. रीडिंग द फेवरेट बुक, मनपसंद किताब पढ़ने की स्वतंत्रता. एंड विजिटिंग द डिजायर्ड प्लेस ओनली, और इच्छित स्थान को भ्रमण करने की स्वतंत्रता. यही स्वतंत्रता थी जिसको वो समझते थे कि यही फ्रीडम है. नेल्सन मंडेला जब वो स्टूडेंट थे. एज अ बॉय ही कंसिडर्ड द लिबर्टी टू रन इन द फील्ड, और जब वो लड़के थे तो वो किसको स्वतंत्रता समझते थे? वो समझते थे टू रन इन द फील्ड, खेत में दौड़ना. टू स्विम इन द रिवर ऑफ विलेज, गांव के नदी में तैरना. टू रोस्ट द मिलीज इन द ओपन स्काई, खुले आकाश के नीचे भुट्टा पकाना. एंड टू राइड द बुल्स टू बी द सिंबल ऑफ फ्रीडम, और बैल की सवारी करना, इसी को स्वतंत्रता का मतलब समझते थे. बट ऑन हैविंग ग्रोन एज ए यंग मैन he felt that these freedoms were just an illusion and were transitory. और जब वो बड़े हुए तब उनको पता चला, उनको अनुभव हुआ कि जिस स्वतंत्रता की वो बात बचपन में, लड़कपन में करते थे, छात्र के रूप में करते थे, वो तो भ्रम था. दैट वाज एन illusion, वो भ्रम था. एंड वेयर ट्रांजिटरीज, और वो क्षणिक था. वास्तविक स्वतंत्रता वो नहीं थी. ही वॉज कन्विंस्ड that those transitory freedoms were not his goal, और वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि ये जो क्षणिक स्वतंत्रता है ये उनका गोल नहीं है, ये उनका उद्देश्य नहीं है. he knew well that the real freedom lie in the fundamental and honorable freedom. उनको भली भांति पता था कि वास्तविक स्वतंत्रता मौलिक और सम्मानजनक स्वतंत्रता में है. और ये क्या है? ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, अपनी क्षमता को प्राप्त करना. अर्निंग हिज कीप, अपने जीविकोपार्जन को प्राप्त करना, जीविकोपार्जन कर पाना, उसकी क्षमता विकसित करना. एंड मेकिंग हिज फैमिली, और अपने परिवार को बसा पाना. ये सारे फंडामेंटल और ऑनरेबल फ्रीडम थे, मौलिक और सम्मानजनक स्वतंत्रता थी. ही फेल्ट दैट द फ्रीडम फॉर ऑल हिज पीपल ओनली कुड इंश्योर हिज फ्रीडम. उनको वो महसूस करते थे कि वो अपने, अगर सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं तभी उनको वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त होगी. दिस वॉज द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई नॉट? क्या मंडेला ये सोचते हैं कि उत्पीड़क यानी उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है? क्यों नहीं? दोनों के पक्ष में तर्क देना है. मंडेला हैज राउट ए ग्रेट फिलॉसफी अबाउट ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी. नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा में उत्पीड़क और पीड़ित दोनों के बारे में एक बहुत ही महान दर्शन शास्त्र उन्होंने गढ़ा है, एक महान उन्होंने तर्क गढ़ा है. क्या है वो तर्क, वो दर्शन क्या है? ही सेज दैट एन ऑपरेसर हु टेक्स अवे समवन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. वो ये कहते हैं कि कोई उत्पीड़क जिसने किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण कर लिया हो, जिसने किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया हो, वो वास्तव में घृणा का कैदी है. वो फ्री नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो कैद है, वो गुलाम है. किसका गुलाम है? वो घृणा का गुलाम है. प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. वह मानसिक संकीर्णता और पक्षपात के बेड़ियों और जंजीर के पीछे लॉक है, वो बंधा हुआ है, वो जंजीरों में कैद है.
दस द ऑपरेसर इज नॉट फ्री, इसलिए मंडेला के अनुसार ऑपरेसर यानी उत्पीड़न करने वाला फ्री नहीं है। एंड नाउ द क्वेश्चंस थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल गेस्ट्स लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई ट्रायम्फ ऑफ? ट्रायम्फ मीन्स विजय। इतनी बड़ी संख्या में उद्घाटन समारोह में पूरे देशों से लोग उपस्थित क्यों हुए? एंड व्हाट डिड इट सिग्निफाई ट्रायम्फ ऑफ, और यह किसके विजय का प्रतीक था? आंसर, द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड totally democratic and non-racial government in South Africa was a very big and significant event in the contemporary politics of the world. दक्षिण अफ्रीका में पूर्णतः लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार की संस्थापना दक्षिण अफ्रीका में, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय समकालीन राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, या बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। द होल वर्ल्ड कम्युनिटी हैड अपोज्ड द इनह्यूमन अपार्थाइड सिस्टम एंड हैड एडवोकेटेड द पॉलिटिकल इमेंसिपेशन फॉर द डार्क स्किन्ड पीपल। पूरे विश्व समुदाय ने दक्षिण अफ्रीका के अमानवीय रंगभेद की नीति का विरोध किया था और वहाँ पर ब्लैक स्किन्ड पीपल यानी काली चमड़ी वाले लोगों के राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत की थी। दैट वाज व्हाई सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टू कन्फर देयर सपोर्ट टू द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट। यही कारण था कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में से इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हुए उस उद्घाटन समारोह में, ताकि वो अपना नई सरकार के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त कर सकें, अपना समर्थन प्रदान कर सकें। द इनॉग्रेशन सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और ये जो उद्घाटन समारोह था न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के विजय का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला ऐसा क्यों कहते हैं कि वो उन सभी दक्षिण अफ्रीकी देशभक्तों का योगफल हैं जो उनके पहले गुजर चुके हैं? आंसर, a number of South African leaders and revolutionaries had stood up against the system of apartheid in South Africa. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ अनेकों दक्षिण अफ्रीकी नेता उठ खड़े हुए और उसका उन्होंने विरोध किया। They fought for years, वो सालों तक लड़ते रहे, and sacrificed their all, और उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया फॉर द रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के काली चमड़ी वाले लोगों के सम्मान और उनकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। मंडेला लर्नड ए लॉट फ्रॉम दोज अनसंग हीरोज। मंडेला ने उन अज्ञात, उन अनकहे वीरों की वीरता से, उन वीरों की जीवनी से बहुत कुछ सीखा। एंड टुक इंस्पिरेशन, और प्रेरणा ली, टू कीप द फाइट कंटिन्यू, ताकि वो युद्ध को जारी रख सकें, संघर्ष को जारी रख सकें अगेंस्ट अपार्थाइड फ्रॉम देम, अपार्थाइड के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रख सकें। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन मंडेला फाइंड्स हिमसेल्फ ओवरवेल्म्ड। उद्घाटन के दिन मंडेला अपने आप को भाव विह्वल पाते हैं, वो भाव विह्वल हो जाते हैं। रिमेंबरिंग दोज ग्रेट हीरोज, उन महान नायकों के, उन महान शुरमाओं के जीवन को याद करके। एंड कंसिडर्स, और वो समझते हैं हिमसेल्फ टू बी देयर सम,
और वो अपने आप को उन सभी हीरोज़, उन सभी महान योद्धाओं का योगफल समझते हैं। टू द हिस्टोरिक डे ऑफ द इनॉग्रेशन थ्रू मंडेला ऑन आइस। On the day of inauguration, Mandela finds himself overwhelmed, remembering those great heroes, and considers himself to be their sum to witness the historic day of inauguration through Mandela's own eyes. मंडेला उस दिन अपने आप को भाव विह्वल पाते हैं जब उन महान योद्धाओं को याद करते हैं और अपने आप को उनका योगफल समझते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि उनके लिए वो उस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का साक्षात गवाह बन रहे हैं और अपनी आँखों से उन सारा दृश्य को उन योद्धाओं को दिखा रहे हैं। इसलिए नेल्सन मंडेला भाव विह्वल हो जाते हैं। इन दिस वे मंडेला ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड एंड थैंक टू द ग्रेट अफ्रीकन लीडर्स। इसलिए नेल्सन मंडेला इस प्रकार से अपनी कृतज्ञता को उन महान दक्षिणी अफ्रीकी नेताओं के प्रति ज्ञापित करते हैं और अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ऑन एग्जाम्पल टू दिस आर्गुमेंट? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि उत्पीड़न की गहराई ही चरित्र की ऊंचाई का निर्माण करती है? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? मंडेला इसे किस प्रकार से दिखाते हैं? कैन यू एड योर ऑन एग्जाम्पल टू दिस आर्गुमेंट? क्या इस तर्क के समर्थन में आप अपना कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आंसर, famous physicist Newton once discovered that each action has equal and opposite reaction. महान भौतिक विज्ञानी न्यूटन ने एक बार यह खोज किया था कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। It is perfectly correct with reference to what Mandela narrates in the given extract. मंडेला ने इस गद्यांश में जो वर्णन किया है यह बिल्कुल इस नियम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन एंड हाइट्स ऑफ कैरेक्टर आर टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। उत्पीड़न की गहराई और चरित्र की ऊंचाई ये मानवता के दो विपरीत ध्रुव हैं, विपरीत छोर हैं, अंतिम छोर हैं। विच मंडेला हैज ट्राइड टू इलस्ट्रेट, जो मंडेला ने दिखाने की कोशिश की है। He intends to say that the depth of operation does not break the strong fighters. वो ये कहना चाहते हैं, वो ये बतलाना चाहते हैं कि उत्पीड़न की गहराई मजबूत योद्धाओं को तोड़ नहीं पाती है, बट इट टेक्स देम टू द ऑप्टिमम हाइट ऑफ कैरेक्टर, बल्कि यह उन महान योद्धाओं को चरित्र की सर्वोच्च ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। द मोर वेयर द अफ्रीकन रिवॉल्यूशनरीज ऑपरेस्ड द बिगर हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स दे अचीव्ड। अफ्रीकी क्रांतिकारियों को जितना ज़्यादा ऑपरेस किया गया, उत्पीड़ित किया गया, द बिगर हाइट्स ऑफ कैरेक्टर दे अचीव्ड, उन्होंने चरित्र की उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त किया। यहाँ ऑपरेस की जगह पे ऑपरेस्ड होगा, ईडी जोड़ना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? स्वतंत्रता के प्रति मंडेला की जो सोच है वो उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदलती चली गई? आंसर,
As a boy of his village, Nelson Mandela enjoyed the freedom of running in the fields, swimming in the river, and running through his village, roasting maize in the skies, and riding the slow-moving bulls. एक लड़के के रूप में नेल्सन मंडेला ने किन किन स्वतंत्रताओं का आनंद लिया, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं थी जिसका आनंद नेल्सन मंडेला ने लिया एक लड़के के रूप में? उनके लिए स्वतंत्रता क्या थी? उनके लिए स्वतंत्रता थी रनिंग इन द फील्ड में दौड़ना, खेतों में दौड़ना, स्विमिंग इन द रिवर, रनिंग थ्रू हिज विलेज, उनके गांव से होकर गुजरने वाली नदी में तैरना, रोस्टिंग मिलीज इन द ओपन स्काई, खुली आकाश में भुट्टी पकाना, एंड राइडिंग द स्लो मूविंग बुल्स, और धीमे चलने वाले बैलों की सवारी करना। ये उनके लिए स्वतंत्रता का मायने तब थी जब वो लड़के थे, बच्चे थे। ही नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी ट्रबल इन एंजॉइंग हिज फ्रीडम एज ए चाइल्ड। जब वो बच्चे थे तो उनको अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। एज ही ग्रीव ओल्डर, जब वो बड़े हुए, ही डिस्कवर्ड दैट ऑल हिज चाइल्डहुड फ्रीडम्स वेयर एन इल्यूजन। जब वो बड़े हुए तब उनको महसूस हुआ कि बचपन की उनकी जो भी स्वतंत्रताएं थी वो एक भ्रम थी, माया थी। He found as a young man that all his freedom had already been taken away from him. और जब वो युवा हुए तो उनको पता चला कि उनकी जितनी स्वतंत्रताएं थी वो पहले ही उनसे छीन ली गई थी। He wanted some transitory freedoms for him. वो अपने लिए कुछ क्षणिक स्वतंत्रता चाहते थे एज ए स्टूडेंट, जब वो छात्र थे इनिशियली, शुरू में। But when he saw his people completely deprived of their basic and honorable freedoms of achieving their potentials, earning their keep and making family, he started yearning for the same. लेकिन जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने अपने लोगों को देखा, अपने समुदाय के लोगों को देखा, अपने ही तरह काली चमड़ी वाले लोगों को देखा कि वो पूर्णतः वंचित थे। किस चीज़ से वंचित थे? तो वो वंचित थे ऑनरेबल फ्रीडम्स यानी सम्मानजनक स्वतंत्रता, एंड बेसिक फ्रीडम्स मौलिक स्वतंत्रता से वंचित थे। और वो स्वतंत्रता उनकी नज़र में क्या थी? मौलिक स्वतंत्रता और ऑनरेबल फ्रीडम क्या थे? अचीविंग देयर पोटेंशियल्स, अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना, अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्धि को प्राप्त करना। अर्निंग देयर कीप, जीविकोपार्जन कर पाना। एंड मेकिंग देयर फैमिली, अपना परिवार बसा पाना। ही स्टार्टेड यर्निंग फॉर द सेम, जब उनको लगा कि उनके लोगों से ये स्वतंत्रता छीन ली गई है और वो वंचित हैं, तो वो इसके लिए उनके मन में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। दैट इज़ हाउ मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज्ड विथ एज एंड एक्सपीरियंस। इस प्रकार से मंडेला का स्वतंत्रता के प्रति उनकी जो सोच थी वो उम्र के साथ और अनुभव के साथ बदलती चली गई। द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की स्वतंत्रता के प्रति ललक और भूख ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया? मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम ग्रीव स्ट्रॉन्गर विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला की स्वतंत्रता के प्रति भूख उम्र और अनुभव के साथ और मजबूत होती चली गई। ही वॉन्टेड सम ट्रांजिटरी फ्रीडम्स फॉर हिम एज ए स्टूडेंट इनिशियली। शुरू में जब वो बच्चे थे, जब वो छात्र थे, तो उनको सिर्फ कुछ क्षणिक स्वतंत्रता की ही उनकी मांग थी, वही वो चाहते थे। लेटर ही फाउंड, बाद में उन्हें पता चला that even the basic and honorable freedom of him and his people had already been taken away. बाद में उनको पता चला कि उनके और उनके लोगों से जो यहाँ तक कि जो मौलिक स्वतंत्रता थी वो भी उन लोगों से छीन ली गई थी। His hunger for freedom and emancipation grew stronger day by day. स्वतंत्रता के प्रति उनकी भूख लगातार दिन प्रतिदिन बलवती होती चली गई, मजबूत होती चली गई। ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ एपार्थेड यानी रंगभेद की नीति से संघर्ष करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसके खिलाफ उठ खड़े होने के लिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस
और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ही रिमेन्ड इन जेल फॉर 27 ईयर्स, वो जेल में 27 वर्षों तक रहे। ही ड्रीव अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द इनह्यूमन एंड ब्रूटल सिस्टम ऑफ एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की क्रूर और अमानवीय व्यवस्था के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। ड्यू टू लॉन्ग फाउट वार अगेंस्ट एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका and international pressure on the white-skinned government, a fresh elections was conducted and Nelson Mandela became the first black president of South Africa. और दक्षिण अफ्रीका में एपार्थाइड यानी कि रंगभेद की नीति के खिलाफ चली लंबी लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव वाइट स्किन्ड पीपल पर था, यानी गोरी चमड़ी वाले लोगों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण दक्षिण अफ्रीका में एक नया चुनाव संपादित हुआ, नया चुनाव संचालित किया गया और इस चुनाव में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। दैट इज़ हाउ मंडेलाज लाइफ चेंज। इस प्रकार से मंडेला का लाइफ एक स्टूडेंट से एक राष्ट्रपति के रूप में चेंज हो गया। सो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन गिवन इन द लेसन, in between the lesson and at the end of the lesson we have tried to answer all these questions. So one more video will follow, and in that video we shall discuss the exercises which have been given after the question at the last, at the end of the text, at the end of the lesson. So we shall do that in the next video. How to draw more and more benefit of this video, watch this video again and try to answer all the questions and answers in your own words too, if you can do, and write down the answers that have been given from this video on your notebook and send it to me. I will check it, and keep watching this video and wait for the next video to come. Have a nice day.